Perfect. So I think we have some good amount of people. We can start, and as we move along, और लोग भी join कर लेंगे, and we can take it from there. So this particular session is for Erasmus Mundus scholarships. I'll be going over the entire thing, किस बारे में है, कैसे apply करना है, how do you find the links, how do you find the programs, all of that. So if you have any questions, you can put them in the chat box, and we will be getting to them at the end as well. So just a little bit about myself. My name is Ramsha. I'm a development professional and an educational consultant. I've been doing this for around 6 years. I graduated from NAST, and then I got a master's in international development from the University of Warwick, which was on a fully funded Commonwealth shared scholarship. Um, and after that, I'm now currently doing my PhD in development research in Germany. I also attended the Harvard College Conference, HPAIR, as a social policy and justice scholar. In the past 5 or 6 years, I have worked with over 600, 700 individuals, particularly for fully funded scholarships. That includes Fulbright, Chevening, Erasmus, DAAD, Commonwealth, and a lot of others, Hungarian Stipendium, MEXT, ADB, World Bank scholarships. So quite a few, but जो major scholarships हैं वो यही हैं. And then I also founded my own venture, which was Ramshas Consulting, that allowed me to branch out and help more people. We also have on the call with us a very special person for me who was my client. And I would want Afifa to introduce herself as well. Afifa, can you tell us about yourself? Hello, Ramsha. Thank you for having me. So I don't know. I really don't have as much to talk about myself, but I think because I am not a very old graduate, I graduated from NUST in 2023, but I am currently studying public sector innovation and e-governance as an Erasmus Mundus scholar at KU Leuven, which is one of the most innovative universities in Europe. And I think I would like to what I would like to highlight about myself that I'm a very relatable person to most of the people listening to me right now, because while I like to believe that I was a very hardworking individual, I was never a very high achiever, you could say. But I think that I was always a very critical person and believed in the magic of hard work and persistence. So I think that really helped. I worked as a data journalist for 1 year, but my work experience was quite limited when I was applying for my scholarship. So what majorly helped me was my bachelor's degree and the experiences that I had during my degree. And I'm so sorry. So in my last year, I think I knew that I wanted to apply for my master's abroad. So I applied to as many scholarships as I could. Because like the first time I applied, I was rejected outrightly in my final semester. But then when I was working for 1 year, at that time I targeted like more than 13 scholarships. Yeah, and I think that allowed me to, because I was successful in some and was rejected by some, and then I think now I'm in a position to sort of analyze that why was I rejected or selected in some and then got rejected in some. So yeah, I think I can surely like sort of contribute some important insights in this session today. Perfect. Thank you so much. Okay, so ये question बहुत ज़्यादा आता है. I try to cover it in all of the sessions. What does fully funded mean, right? So fully funded means that everything is covered. बहुत ज़्यादा लोगों का होता है कि नहीं मैं बैंक स्टेटमेंट कैसे दिखाऊंगी या बाकी चीज़ें कैसे होंगी. So if you're aiming for a fully funded scholarship, which Erasmus is, you don't have to pay for anything. So you're not paying for your tuition, you're not paying for your living cost, you're not paying for travel, insurance, additional allowances. Everything is provided to you. You do have to manage all of it. So like they'll be providing a stipend and you need to manage your rent and your grocery and everything else within that amount. But ये है कि आपको self में कुछ भी finance नहीं करना पड़ेगा. All of it will be covered by Erasmus Mundus. सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अच्छा मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मुझे तो पता ही नहीं है. सबसे पहले आप लिंक खोलें. Erasmus Mundus स्कॉलरशिप का कैटलॉग है पूरा. I'll go over the catalog as well a little bit. You can go over the catalog. You can actually check out कि आपके
से रेलिवेंट प्रोग्राम्स कौन से हैं। अब one thing that I wanted to highlight, and the reason that Afifa is here as well, is to highlight to you how challenging this entire thing is. Because काफ़ी लोगों को पता भी होता है, लेकिन बहुत लोग अज्यूम करते हैं कि यार अच्छा ठीक है, मुझे प्रोग्राम मिलेगा, मैंने उसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है, मैंने उसके लिए एप्लीकेशन बनानी है, मैंने सबमिट कर देनी है और वहाँ पे बात ख़त्म हो गई। बट दैट्स नॉट इट। इवन द पॉइंट वेयर यू आर figuring out which scholarships or which programs to apply for, half of the clients that I get, they look at the Erasmus Mundus catalog and I tell them कि इन सारों को go through करें, मैंने आपके लिए ये recommend किए, आप इनमें से देख के बताएं कि आपको कौन सी लगती है। They're like, ये 200 प्रोग्राम्स मुझे देखने हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये मैं कैसे करूँ, ये तो मेरे पास तो इसका टाइम ही नहीं है। सो इफ़ यू फील लाइक यू डोंट हैव द टाइम टू गो थ्रू प्रोग्राम्स, दैट मीन्स वहीं पे आपका फिट खराब हो जाता है इन सारी चीज़ों के साथ, राइट? So you have to be willing to put in the effort and the energy to go through huge amounts of data. And that's something that a counselor can support with. But a counselor cannot tell you, okay, ये programs है, इनमें apply कर लो, क्योंकि बाद में आपको लगेगा यार वो एक और program भी तो था, वो मेरे counselor ने नहीं बताया। वो इसलिए क्योंकि it is also your responsibility to go through the options that you have based on what your counselor is telling you, and try to discuss them with your counselor or a mentor or whoever is helping you with your applications. So वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आप Erasmus Mundus को टारगेट करना चाह रहे हैं, there are like around 204 programs in the catalog right now. Should be willing to go through all of them, and you have to go through all of them in order to अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ से किन के साथ फिट करता हूँ। सिर्फ नाम से आप रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं कर सकोगे कि ये प्रोग्राम मेरे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है। दूसरी चीज़ है एंट्री रिक्वायरमेंट्स। बहुत लोग प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, उसकी एप्लीकेशन भी बनाना शुरू कर देते हैं, उनको बाद में रियलाइज होता है यार मैं तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं था। सो ईच प्रोग्राम विल हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट एज टू आप उस पर अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ एक दो प्रोग्राम्स हैं जिस तरह ग्लोबल माइंड्स है, दैट रिक्वायर्स दैट यू हैव योर डिग्री इन साइकोलॉजी। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का एक और प्रोग्राम है, उसकी भी रिक्वायरमेंट है कि आपका बैचलर साइकोलॉजी में हो। सो just because you have experience in that field is not enough. So you need to be able to go through the entry requirements in excruciating detail. Do I meet them or do I not, and am I good candidate for this or not? So you also need to put in perspective everything you've done before. आपको एक प्रोग्राम अच्छा लगता है, आपको लगता है यार मेरा वैसे ही जनरली मेरे ग्रेड्स वगैरह अच्छे हैं तो मैं इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर लेता हूँ। यू ऑल्सो नीड टू सी, आर यू अ गुड फिट, डू यू हैव सम एक्सपीरियंस, सम कोर्सेज, कुछ उसके साथ अलाइन करता है कि नहीं करता। और फिर आपका गोल इस वक्त होना चाहिए कि आप 3 से 5 प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट करें और फिर उसमें से नैरो डाउन करने की कोशिश करें कि आपने पहले किस पे काम करना शुरू करना है। और एक और चीज़, आई थिंक आइल्स हम थोड़ा सा आगे भी डिस्कस करेंगे, बट वेयर इज इट, या आइल्स का मैं अभी भी डिस्कस करना चाह रही थी कि आइल्स प्लीज़ दे दें। आई नो कि आपको पता भी चलेगा कि भाई उस प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इस प्रोग्राम के लिए नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप, सो योर प्रायोरिटी शुड बी टू गेट ऑल ऑफ दीज प्री रिक्विजिट्स आउट ऑफ द वे। आई नो इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट मनी वाइज एंड एनर्जी वाइज, बट यू नीड टू गिव आइल्स ताकि वो हो जाए, आप उसको करके रख लो, क्योंकि ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स के लिए, मोस्ट स्कॉलरशिप्स 90% स्कॉलरशिप्स के लिए आपको आइल्स चाहिए होगा। जब आप ऑलरेडी फंडिंग की वजह से रिस्ट्रिक्टेड हो, जब आप अपने आप को आइल्स की वजह से भी रिस्ट्रिक्ट करोगे, तो आपकी ऑप्शंस और बहुत कम हो जाएंगी। सो इस स्टेज पे आपको आइल्स भी देना है और उसको कोशिश करनी है कि टाइमली वो हो जाए, एंड यू डोंट हैव टू work on it later. So Erasmus Mundus catalog sort of looks like this. Abhi 192 programs थे when I made this, but I think the programs have been updated. So हर प्रोग्राम का अपना एक एक्रोनिम है और अपनी एक वेबसाइट है। सो यू विल गो टू द इंडिविजुअल वेबसाइट एंड लुक फॉर देयर इंडिविजुअल एंट्री क्राइटेरिया। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं Erasmus Mundus की डेडलाइन बता दें। Erasmus Mundus की कोई डेडलाइन नहीं है, बिकॉज Erasmus Mundus सिर्फ एक अम्ब्रेला टर्म है दैट कवर्स ऑल ऑफ दीज 200 प्रोग्राम्स। सो यू कैन फिगर आउट द डेडलाइन, यू कैन आस्क मी द डेडलाइन फॉर इनोवेटिव मेडिसिन एंड आई विल टेल यू कि इनोवेटिव मेडिसिन की ये डेडलाइन है। बट Erasmus Mundus की कोई डेडलाइन नहीं है, Erasmus Mundus का कोई ओवरऑल क्राइटेरिया नहीं है, कोई आपको ओवरऑल उसमें रिक्वायरमेंट नहीं नजर आएगी कि अच्छा सीजीपीए कितना रिक्वायर्ड होता है Erasmus Mundus के लिए।
you're gonna have to go to that specific program and figure out कि जिस program पे आप apply करना चाह रहे हो उसका criteria क्या है. So make sure to go through each individual program, figure out their entry requirements, figure out कि उनको IELTS में क्या चाहिए, figure out कि उनको आपके GPA कितना चाहिए, क्योंकि Erasmus Mundus overall आपको कुछ भी नहीं बताएगा कि Erasmus Mundus की ये requirement है, because Erasmus Mundus is just an umbrella term for around 200 programs that come under it. Yep. एक और important चीज बहुत ज़्यादा ये question आता है कि do I need to come back? So no, Erasmus Mundus is one of those scholarships that does not require you to come back. So you can actually stay in Europe, work in Europe if you want. There is no requirement, there is no restriction. अगर आप चाहते हो आप काम कर सकते हो. You will still need to adhere to immigration policies. ऐसा नहीं है कि वो उसके बाद आपको कोई PR मिल जाएगी या आपको कोई direct job permit मिल जाएगा. You will need to look for jobs. You will need to look for countries that will allow you to stay after an Erasmus degree. काफ़ी बड़ा नंबर है वैसे. A lot of countries in Europe will provide you a job search visa if you have an Erasmus degree. That includes Netherlands, that includes Germany, that includes Denmark, and a lot of other countries. जिनमें अगर आपके पास Erasmus की scholarship है तो आपको automatically एक job search visa मिल सकता है. It can be for 1 year, 2 year, 2.5 years, depending on the country, which will allow you to look for a job during that time. But if you want to stay long term, you're gonna have to work or figure out another solution to stay. जनरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स की, इट्स प्रीटी बेसिक, बट ये कि आपको प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए, आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट्स चाहिए. कुछ प्रोग्राम्स एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आपने आपकी डिग्री नहीं कंप्लीट हो या तब भी अप्लाई कर सकते हो, बट उस केस में आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, आपकी लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट या कोई होप सर्टिफिकेट. लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू ट्राई टू फिगर आउट कि वो किस तरह से आपने मैनेज करने हैं. आइडियली लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस मैंने जितना एरास्मस में देखा है एकेडमिक रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोफेशनल भी चल जाते हैं, बट आपने फिर कोशिश ये करनी है कि आपके पास एक पूल हो रेफरीज का, 2-3 एकेडमिक, 2-3 प्रोफेशनल जिनको आप रीच आउट कर सको फॉर विच एवर प्रोग्राम्स दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर. सीवी यूजुअली आपकी यूरोपास की होती है. दैट्स अ वेरी पर्टिकुलर फॉर्मेट दैट यू नीड टू फॉलो. Even for programs that don't ask you to submit it in a Europass format, it is recommended that you do it in a Europass format. You might need your passport and scholarship specific essays or assignments होती हैं कुछ पर्टिकुलर स्कॉलरशिप्स की, तो उनको भी देखा जा सकता है. एलिजिबिलिटी मैंने थोड़ी सी ओवरऑल नोट डाउन करने की कोशिश की है. पाकिस्तान इज़ एन एलिजिबल कंट्री इफ़ यूर फ्रॉम पाकिस्तान, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपको वो देखनी है जो वो पर्टिकुलरली आपसे चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में. इट्स यूजुअली अ बैचलर्स. दे डोंट स्पेसिफाई अ CGPA फॉर मोस्ट स्कॉलरशिप्स, फॉर मोस्ट प्रोग्राम्स, बट कुछ प्रोग्राम्स में CGPA की रिक्वायरमेंट भी है. या आइल्स हमने डिस्कस कर लिया है. अच्छा, टाइमलाइन ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि अच्छा मुझे टाइमलाइन एक्सप्लेन करते हैं एरास्मस की. एरास्मस डजंट हैव अ टाइमलाइन, सो ईच पर्टिकुलर प्रोग्राम विल हैव अ डिफरेंट टाइमलाइन. अभी आपके कुछ प्रोग्राम्स खुले हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर लाइक एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स, so देर आर 2 जिन पे मैं अभी करंटली देख रही हूँ. एक फ्लरिश है और एक ग्लोबेट है, राइट. सो फ्लरिश की डेडलाइन दिसंबर के एंड में है, ग्लोबेट की डेडलाइन फरवरी में है. सो इफ़ यूर फ्रॉम एन एजुकेशन फील्ड, सो वो 2 डेडलाइंस आपके लिए रेलिवेंट होंगी. बट इफ़ यूर फ्रॉम लाइक AI, तो आपकी डेडलाइंस अभी बहुत जल्दी होंगी. सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम्स दैट यू टारगेटिंग, द फील्ड दैट यू फ्रॉम, दैट विल स्पेसिफाई कि आपकी टाइमलाइन किस तरह से काम करेगी. या उस पे हाउ टू अप्लाई आई थिंक हमने मोस्टली कवर कर लिया है, सो आई वुडंट गो ओवर दैट. आई थिंक यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ दैट. ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब जब आपने शुरू करना है, लाइक यू आइडेंटिफाइड द प्रोग्राम्स, नाउ यू नीड टू स्टार्ट ऑन योर एप्लीकेशन, यू हैव डन द रिसर्च, यू हैव गॉन थ्रू द प्रोग्राम्स. सबसे पहली चीज़ आपको ये फिगर आउट करनी है आप ये प्रोग्राम में उनको पिच क्या करोगे. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फील लाइक कि ओके हम बस अपने बारे में बता देंगे or that should be enough. That will not be enough because they need to hear something new, something specific, something innovative from you regarding what your long-term goals are and what you intend to do with those. So इसको मैं brainstorming कहती हूँ. There are a lot of other ways to approach this, and what I particularly wanted to include a FIFA for was this experience as well. क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग struggle करते हैं कि नहीं क्या मतलब है problem statement, मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती कि मैं UN में जॉब करना चाहती हूँ, isn't that enough? तो no, that's not enough because they want to know कि आप UN में काम क्या करना चाहते हो, किस तरह के इश्यूज पे काम करना चाहते हो, what particular ideas will you be working with. So FIFA, if you can share that, of course you can share it for the other programs as well, but
since Pioneer was the one that you were successful for, can you tell us what your thought process was and how did you try to answer these three questions before you started working on your personal statement? Yeah, I would love to answer this question. And before that, I would like to say that I applied for Pioneer once and I was rejected. And that's where I reached out to Ramsha basically. And that was the time because I had extensive writing experience. तो मुझे हमेशा से ये खुशफहमी थी या मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी ये थी कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ। तो मुझे लगता था कि मैं अच्छा लिखती हूँ तो मैं ऐसे भी बहुत अच्छा लिखूंगी। तो जब मैंने ऐसे रमशा को पढ़ाया और अब क्योंकि मैं उस चीज़ से मतलब गुजर के आई हूँ, तो नाउ आई रियलाइज कि मेरे ऐसे में सब कुछ था। आई वॉज शोइंग माई इंटरेस्ट, I was talking about myself and what I want to do, but there was no specific goal that I was, targeting. And जो मेरा सबसे वीकेस्ट एरिया था जिसकी वजह से मेरा लेटर ऑफ मोटिवेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजेक्ट हो गया था, उसकी रीज़न ही ये थी कि मैंने कोई गैप नहीं आइडेंटिफाई किया हुआ था। आई वॉज लाइक प्रॉबली आई वॉज ऑल ओवर द प्लेस। मतलब उस पूरी मतलब मेरा ऐसे स्ट्रक्चर था, लेकिन इस तरह से था मे बी कि आई फील लाइक कि जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए तो मोस्टली हम ये कर रहे होते हैं कि वी आर टारगेटिंग द वी आर सेइंग दैट द स्कॉलरशिप इज आवर गोल, and that shouldn't be the case. Like our goal is should be something bigger, the purpose should be bigger, और वो उसको आपको एड्रेस करना चाहिए। सो इन माई केस आई वाज ट्राइंग टू से कि पाकिस्तान में जो है वो डिजिटल पोर्टल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो इनएफिशिएंट हैं और वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। तो मैंने ये गैप आइडेंटिफाई किया कि ई गवर्नेंस के एक तो ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा है भी नहीं पाकिस्तान में, लेकिन जो थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंटेड भी है वो बेनिफिट नहीं कर रही सोसाइटी को। तो मैंने सोशल इशू एक उठाया और उसको कनेक्ट किया कि हम किस तरह से ई गवर्नेंस के पोर्टल से मैं उस इशू को थोड़ा बहुत एड्रेस कर सकती हूँ। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि आवर गोल्स शुड बी सॉर्ट ऑफ वेरी रियलिस्टिक एंड मतलब बहुत लार्जर देन लाइफ बात नहीं करनी चाहिए आपको। मतलब आप एक ही इंसान हो और आप अभी अप्लाई कर रहे हो, आप अभी कह रहे हो कि मैंने ग्रेजुएट होना है तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद ये करना है। इवन इन द लॉन्गर रन यू शुड ऑलवेज बी रियलिस्टिक कि मैं एक इंसान हूँ एज एन इंडिविजुअल या इवन एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैं एक हद तक ही कुछ अचीव कर सकता हूँ। दैट शुड बी इम्पैक्टफुल बट नॉट समथिंग जो कि बिल्कुल ही मैं कहूँगी मैं पूरे सिस्टम को बस ट्रांसफॉर्म कर दूंगी। दैट्स जस्ट वर्ड्स। So I think I provided them a solution as well, and how the program will equip me enough to sort of implement that solution. तो मैंने ये कहा कि मैंने अपनी कैपेसिटी में सब ट्राई कर लिया है to address a certain social issue in my country, but now the next and most logical step in my journey is to take up this master's program which will give me these certain skill set, जो कि मैं जब implement करूँगी तो वो issue जो है थोड़ा बहुत किसी मेरी अपनी limited capacity में address हो जाएगा। And the solution that I was pitching was also like not very cliche. वो ये नहीं था कि मैंने क्लाइमेट चेंज करना है या इवन क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत ब्रॉड टर्म है। आई फील लाइक कि बहुत दफ़ा क्योंकि अब मैं भी थोड़े बहुत रिव्यू कर रही होती हूँ कभी कभार ऐसे अपने फ्रेंड्स वगैरह के, तो आई फील लाइक कि बहुत क्लीशे चीज़ें आप लिखते हो या अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो वही वाली बात कर रहे होते हैं जो हर दूसरा बंदा कर रहा होता है, एंड इट डजेंट शो दैट यू आर यूनिक। एंड आई फील लाइक इरास्मस में eligibility is one thing, लेकिन I feel like the most important thing with your application or even your essay is your relevance. If you can show कि आपका बैचलर्स आपके बैचलर्स के दौरान जो एक्सपीरियंसेस थे वो आपकी वॉलंटियरिंग आपका ओवरऑल जितना भी प्रोफाइल है उसको आप उस प्रोग्राम से किस तरह अलाइन कर रहे हो, तो वो आई फील लाइक कि वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले ऐसे के अंदर भी। Yeah. दैट समथिंग। Definitely. Yep. I think that's really interesting. And you mentioned that, and I remember कि जब आपने मुझसे पहली दफ़ा बात की थी, आपने ये कहा था कि रमशा पाइनियर मेरा ड्रीम प्रोग्राम है। तो मैंने कहा था कि ठीक है, वो तो हम करेंगे, बट लेट अस ट्राई टू अप्लाई टू मोर प्रोग्राम्स एज वेल। एंड बाय द टाइम दैट हम पाइनियर पे आए थे, पता कि हम बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस कर चुके थे। आई थिंक हम कॉमनवेल्थ भी किया था, हमने इरास्मस के और भी किए थे, और हमने एक दो और छोटे जो इंटरनल प्रोग्राम्स होते हैं वो भी किए थे। और इस पॉइंट तक काफ़ी मतलब कि बहुत स्ट्रेस भी हो चुका हुआ था और बहुत लाइक रिजेक्शंस और हाफ एक्सेप्टेंसेस आता भी आ रही थी। स्कॉलरशिप्स सारा कुछ हो चुका हुआ था। बट आई रिमेम्बर व्हेन यू sent me your email for Pioneer. And I can tell you, I almost cried because like it was a full circle moment for me. कि कि जब आपने मुझे reach out किया था, I remember कि you weren't very sure if you wanted this kind of help, right? You were just like, यार, I want to do this, but like
आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू, लाइक आई हैव डन एवरीथिंग आई कैन, तो अब क्या मैं करूँ? सो आई नो दैट थोड़ी सी अप्रिहेंशन भी थी, बट वो मेरे लिए बहुत फुल सर्कल मोमेंट था कि लाइक यू नो समबडी कम्स टू मी एंड वो पहली मीटिंग में कहता है ये मेरा ड्रीम प्रोग्राम है, इसमें मुझे जाना है, एंड लाइक ऑलमोस्ट अ ईयर लेटर व्हेन दैट एक्चुअली हैपेंस, तो दैट्स वेरी फुलफिलिंग. आई मीन ऑफ कोर्स it's going to be more fulfilling for you, because I know that something like this does have the capacity to change your life. I know that my scholarship changed my life. But yeah, it's very heartwarming to have been through on your journey, because I've seen the hard parts as well. Yeah. कि अब I काफी think अच्छा लगता है बताना और सारा कुछ, but it's not easy. it's not easy. I feel like nobody talks about this, but apart from everything that you are doing, आप essays भी लिख रहे हो, आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, आप सीवी बना रहे हो, आप टीचर्स को रीच आउट कर रहे हो, रिकमेंडेशन, उस सब के बीच में जो मेंटल हेल्थ आपकी खराब होती है ना, जो अनसर्टेनिटी होती है कि मतलब मैं रोज तो ट्राई कर रही होती हूँ, मैं रोज लिख रही होती हूँ एसेज, मैं अप्लाई भी कर रही होती हूँ, बट गेटिंग अ स्कॉलरशिप इज नॉट ईजी. और ये जो लोग हैं ना जो कहते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाऊं मैं, मतलब लाइक अच्छा इतने प्रोग्राम्स मैं कैसे देखूं, या फिर इसमें मैं एलिजिबल हूं तो मैं अप्लाई कर देता हूँ. दे डोंट पुट इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट इनटू इट. उनको तो पहली फुर्सत में स्कॉलरशिप मिल ही नहीं सकती. उन्हीं को मिलती है जो डिजर्व करते हैं, और जो वाकई डिजर्व करते हैं वो एफर्ट भी डालते हैं. तो आई फील लाइक कि बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग हैं अप्लाई करने वाले, और मैं सिर्फ किसी एक प्रोग्राम की बात भी नहीं कर रही. जनरली स्कॉलरशिप लेना या किसी को मिलना, इट्स लाइक ज़्यादा चांस यही होता है कि नहीं मिलेगी. तो अगर आपने वाकई लेनी है तो उस तरह की एफर्ट और उस तरह की सॉर्ट ऑफ मेंटल कैपेसिटी भी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल ही परसिस्टेंट रहना होता है. क्योंकि बहुत इजी होता है गिव अप कर देना, या और नेचुरल भी होता है बहुत दफ़ा कि आपको आपको नहीं पता होता थ्रू आउट योर एप्लीकेशन प्रोसेस के वेदर यू विल बी सक्सेसफुल और नॉट. बट यही वाला माइंडसेट होता है जो ज़रूरी होता है कि मैंने करना है. होगा या Yeah. नहीं, वो तो बात की बात है. Yeah, absolutely. And like just to build on that, I know okay, I always cover like the technical things during the sessions and everything, but this time I really wanted to give more perspective. कि you need to be prepared. If you want to apply for scholarships, you have to, and this is something, जब मेरी पहली कॉल होती है किसी क्लाइंट के साथ जब वो शुरू कर रहा है, तो मैं उसको ये बड़ा ज़्यादा रियलिटी चेक देने की कोशिश करती हूँ कि just accept that the next few months of your life are going to be hell. If you think that you will have time for family and friends and going out and doing all of these nice things and you will be able to manage everything, तो it's gonna be difficult. हो जाएगा, बट आपका रोज का ये होगा कि यार अच्छा काम पे गए, काम से वापस आए, घर वालों के साथ बैठे, खाना खाया और फिर अपनी एप्लीकेशंस पे बैठ गए, एंड हैविंग टू डू दैट डे इन डे आउट फॉर लाइक 7-8 months, इट्स चैलेंजिंग. सो लाइक उसके लिए प्रिपेयर्ड होना जरूरी है कि आप रेडी हो कि यार अच्छा हाँ ठीक है ये होगा, मैं रेडी हूँ. ट्रू. सो या अब हम अगर सबसे पहले पर्सनल स्टेटमेंट की बात करें कि अब आपने फिगर आउट कर लिया है कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसी लगती है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप किन एरियाज पे काम करना चाह रहे हो, आपके किस तरह के कीवर्ड्स हैं, you've identified the areas that you want to work on, the kind of interventions that you want to design. So it's important कि जब हम brainstorming की बात कर रहे हैं, तो the last question is about how do you intend to achieve your goal, what kind of outcomes are you looking to achieve, and they need to be tangible. So you can't just say that I will change this landscape, or I will change this, or I will contribute to this, or I will revolutionize this. What does that revolutionizing look like? There needs to be more on that. Yeah. सो ये कि जब आप LOM लिखना शुरू करते हो, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा जहन में रखो एंड इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट ऑफ दिस जर्नी इज अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. कि ये मैंने किया तो मैंने ये क्यों किया, इसको मैं कैसे लिंक करूं. सो यू वांट टू लुक एट द मास्टर्स. अब आपका एक गोल डेवलप हो गया एंड यू हैव द मास्टर्स, सो यू वांट टू सी कि हाउ डज दिस मास्टर कनेक्ट टू दिस गोल दैट आई हैव. बिकॉज यू कांट जस्ट से लाइक अफीफा सेड द मास्टर्स, द स्कॉलरशिप कैन नॉट बी योर गोल. इफ यू टेल देम दैट मैंने यहाँ तक सिर्फ सोचा है कि बस मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, उसके बाद का मुझे नहीं पता, तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड आर लाइक जीरो. सो यू नीड टू थिंक बियॉन्ड द स्कॉलरशिप. यू नीड टू थिंक ओके ये मास्टर्स स्टेपिंग स्टोन है, इसके आगे मुझे क्या करना है. आपने देखना है कि कोर्स आपके स्किल सेट को कैसे फिट करता है. हाउ डू यू स्टैंड अपार्ट. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बाकियों ने नहीं की, या बाकियों ने की है लेकिन आपने बेहतर की हैं, या अगर आपने बेहतर भी नहीं की तो उसमें ऐसा क्या आउट ऑफ द बॉक्स इतना इनोवेटिव है कि दैट विल हेल्प यू गेन द अटेंशन ऑफ द एडमिशन कमिटी. बिकॉज
when you're writing, अगर आप इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो ना कि यार ओके आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी, आई हैव अ गुड CGPA, मैंने थोड़ी सी जॉब भी की हुई है, मेरा इंटर्नशिप भी है, मेरा वॉलंटियर वर्क भी है, you're just ticking the boxes. That will not guarantee that your motivation letter will even be read twice, and you need for it to be so interesting that उसको कोई दोबारा पढ़ना चाहे, क्योंकि वो शुरू में एक दफ़ा ही पढ़ेंगे और उनको एक दफ़ा अच्छा नहीं लगा तो वो दोबारा नहीं पढ़ेंगे. So the only chance you have of like getting through this is like those 5 minutes where they will spend on your motivation letter. Needs to be so interesting and needs to stand out so much where they're like, यार इसको दोबारा we need to look at this again because this is interesting. So फ्यूचर करियर में क्या करना है एंड आगे जो आपका सेक्टर है उसमें किस तरह की कंट्रीब्यूशन आप करना चाहते हो. हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना चाहिए. आपने मैं बड़ा क्लियरली आपको बताऊंगी, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना. यू डोंट हैव टू से आई एम रमशा हसन, आई वांट टू अप्लाई फॉर द इरास्मस मंडस प्रोग्राम इन इनोवेटिव मेडिसिन, आई हैव 3 years of experience. You're not giving an interview, right? And you're barely going to have 500 words to do the entire LOM. So you need to be very specific. अब introduction में मैं क्या recommend करती हूँ या मेरा क्या proven formula है वो ये कि you need to give them a story. Story मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि आप जो बाकी सारी चीज़ें कहोगे ना कि I have a bachelor's in psychology या जी मैंने इतनी देर यहाँ पे काम किया है तो मैंने ये सीखा है, the chances of somebody else also doing that are very high. Right, so somebody else will have a bachelor's in psychology or any other degree, somebody else would have worked at that job. Because if you're applying for a program, ज़्यादातर आपके सेक्टर के लोग ही अप्लाई कर रहे होंगे ना, क्योंकि सेक्टर्स मोस्ट प्रोग्राम्स में सेक्टर्स डिफाइंड है. हेल्थ में हेल्थ के लोग ही अप्लाई कर रहे होंगे, हो सकता है उन्होंने सेम ऑलमोस्ट काम किया हो या आपके जैसा ही काम किया हो, तो आप कैसे उसको हाईलाइट करें. फिर ये कि इसके बाद आपके जहन में पहला ख्याल आएगा ठीक है, आई टॉक अबाउट अ स्ट्रगल, आई टॉक अबाउट कि मैंने एज अ पाकिस्तानी गर्ल मेरे लिए एजुकेशन हासिल करना कितना मुश्किल था. आई एम नॉट सेइंग दैट दैट्स नॉट अ वैलिड एक्सपीरियंस, बट अगेन दैट्स एन एक्सपीरियंस दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल शेयर एंड अ लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स विल शेयर. सो व्हेन यू राइट दिस दैट एज अ ब्राउन गर्ल आई हैड दिस डिफिकल्टी एंड लाइक मुझे तो पढ़ाई में बड़ा मसला आया, वो सारा कुछ, तो द चांसेस ऑफ देन दैट ऑल्सो लाइक मिक्सिंग इन टू द पूल विल बी वेरी हाई. सो इसमें भी मेरी यही रिकमेंडेशन होगी कि जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं अपने LLM का तो उसको स्पेसिफिक करें. कोई ऐसे एक्सपीरियंस की बात करें जिससे आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे इस बारे में कुछ करने की ज़रूरत है, ये जिस सेक्टर में मैं काम कर रही हूँ उसमें मेरी पर्सनल मोटिवेशन क्या है. And I think I really liked Afifa's introduction as well. Afifa, can you tell us a little about it? Like, what did you? I know you talked about an experience for flood wala. So can you tell us about it and like how did you link it with the program? Okay, so there were 2, 3 applications, I think. Yeah. So the one that got selected was not actually about flood, Okay, but okay. yes, I do remember the introduction was actually very interesting. And it was a story, it was a personal story, but it was a story that was directly relevant to the program. तो तीनों चीजें थी, उसमें प्रॉब्लम भी आ गई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी एक तरह से आ गई थी, उसमें मेरा पर्सनल एलिमेंट भी आ गया था. इट वाज इंटरेस्टिंग टू रीड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट रिलेटेड टू द प्रोग्राम. तो मतलब वो जो जो भी मेरा इशू था वो इस वजह से था क्योंकि देयर वाज अ लैक ऑफ डिजिटलाइजेशन इन माय कंट्री. Yeah. ये उसके अंदर हाईलाइट ये किया था कि देयर वाज अ, मतलब मैंने उसमें ये हाईलाइट किया था कि देयर वाज समवन who was experiencing, someone close to me was experiencing or had an issue with some harassment or violence. इस तरह की मैंने कोई बात की थी कि they were facing this issue and there was no, because COVID था, लॉकडाउन था, there was no way to sort of report the issue. तो जो हमारे ई गवर्नमेंट के पोर्टल्स थे हमने उन्हीं को यूज़ करके पुलिस को रिपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन देयर वाज नो रिस्पॉन्स बिकॉज वो आउटडेटेड सिस्टम्स थे और प्रॉबेबली कोई, मतलब दे वर इन प्लेस बट दे वर नॉट बीइंग यूज्ड उस तरह से. तो देयर वाज नो, मतलब लाइक कोई हेल्प नहीं हुई, इवन तो जस्ट बिकॉज द सिस्टम इज इन प्लेस डजंट मीन दे इट वर्किंग. तो दैट्स हाउ आई हाईलाइटेड कि मेरे लिए सबसे बड़ा आई ओपनर अपनी जर्नी में ये था कि व्हेन समवन क्लोज टू मी was trying to reach out to the police and they weren't able to because of certain issues, because हमारा digital system इतना खराब है. तो that's where it hit me कि we really need like improved digital services in the country. तो इस तरह से मैंने start किया था अपना. Yeah. There are other examples within this PDF as well, so you can look at that. This is also interesting. So एक मेरी client थी, उन्होंने marketing के program के लिए apply किया था. I think she's almost done with her program as well.
So she talked about Telefun. I'm sure like most of us remember that there was this jingle that was 0900786601. So she talked about how, this entire generation of Pakistani kids know an entire number by heart because of a jingle. So that was the power of a jingle, right? And that is all, that also connects to marketing, that connects to human behavior, which was, some of the things that she wanted to talk about in her personal statement. So you can take examples like these. They don't have to be from your childhood. They don't entirely have to be like बहुत पुरानी, बहुत sob story भी होने की जरूरत नहीं है. जरूरी नहीं है कि बहुत serious हो, but like something that helps connect you. For example, another client of mine who was applying for architecture, they talked about how she used to walk in old Lahore with her father, and how she used to note certain features of buildings. And that's just like, it's not very problem oriented, but वो उन्होंने अपना interest आर्किटेक्चर में बिल्ड कर दिया कि वो एक स्पेसिफिक फीचर एक बिल्डिंग का था जिससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ. सो इस तरह की भी चीज़ आप कुछ कर सकते हो. एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने अपना डिस्कस करना होता है. अब ये कि इट नीड्स, अगेन दिस नीड्स टू बी रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर इसी को लें कि आई गिव माई ओन एग्जाम्पल. मेरा बैचलर्स वॉज इन मैथ कम्युनिकेशन, सो दैट वॉज एंटायरली डिफरेंट, एंड माई मास्टर्स दैट आई वॉन्टेड टू डू वॉज इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट. सो ये कि डेवलपमेंट और मीडिया में आपको बहुत ज़्यादा लिंक नजर नहीं आएगा, इवन तो ठीक है, देयर इज एन ओवरलैप. सो अगर मैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड इस चीज़ को देखे बगैर बगैर लिखती कि मैंने डेवलपमेंट में अप्लाई करना है, तो इट वाज अ वेरी रैंडम ड्राफ्ट, बिकॉज इट वाज जस्ट अबाउट ओके, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम नस्ट, आई डिड अ BS मैथ्स कम्युनिकेशन, आई एम अ हाई अचीवर, मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, मैंने ये कोर्सेज पढ़े हैं और एक इंटरेस्टिंग कोर्स ये है जिसमें मैंने ये पढ़ा है. ठीक है, मैंने बता दिया. But if I'm not able to link it to development and the issues that I'm talking about, for example, मैं digitization की बात कर रही हूँ अगर, तो वो कहेंगे कि ठीक है, आपने अपनी एजुकेशन का बता दिया, बट हम क्या करें इसका, ये कैसे रेलेवेंट है, आपने जो पूरी आप स्टोरी बनाना चाह रहे हो उसमें इसका क्या ताल्लुक है. सो व्हाट आई वुड देन डू इज देन आई वुड टॉक अबाउट ओके, आई एम ड्यूरिंग माई कोर्स आई हैव ऑल्सो स्टडीड development support communication. I've studied how development programs can be supported by communication programs. So I talked about that. I talked about a specific project कि भाई हमने communication का एक project किया, हमने कहाँ पे implement किया, उसमें मैंने क्या सीखा, मेरी क्या learning थी, and उसने development के बारे में मुझे क्या सिखाया. So I linked my degree that was in media studies, mass communication, and I talked about how communication seeps into development and how that link helps inform my future plan. So whatever it is that your education background is in, it needs to be more strongly connected to what you want to do in the future, and you need to talk about experiences and projects and research whatever it is that you've done in more detail. You can't just say कि मैंने ये degree की ये modules पढ़ी and that's it. You need to describe the modules, you need to tell them what about them helped you understand things better, and then you need to talk about certain projects. यू कान जस्ट से कि ओके मैंने बस ये किया था या मेरा ये थीसिस था, उस थीसिस में आपने क्या टूल्स यूज किए, क्या सीखा, ये प्रोग्राम से कैसे रिलेट करता है. सो ऑल ऑफ दोज लिंक्स यू नीड टू सॉर्ट ऑफ मेक विद इन दैट स्टेटमेंट. दिस इज अनदर एग्जाम्पल. This is about a person who's applying for a development management program, and they are talking about how their bachelor's in economics helped them do all of this. So you can see that they're talking about certain projects. They're highlighting कि उन्होंने एक project में क्या क्या चीजें अप्लाई की, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, हाउ डिड दिस कनेक्ट विद दिस. सो they're talking about how this is going to help them pursue a career in ESG consulting, which is their long term goal. So you need to be more specific, you need to have very clear insights as to how this degree that you've done, your academic background, connects to what you want to do आगे. So वो clarity होना बहुत जरूरी है. Yup, work experience. So work experience में don't discuss everything. Take the main milestones that relate to again the problem statement that you have और उसको discuss करने की कोशिश करें. अब इसमें बहुत ज़्यादा ये होता है कि मेरा तो इतना experience नहीं है, मेरा तो experience link नहीं करता, तो मेरा तो थोड़ा सा लिंक करता है, मैंने तो इतना अमेजिंग काम नहीं किया. तो आई बी ऑनेस्ट, देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल हैवंट डन अमेजिंग थिंग्स. जो मेरे पास आते हैं ना स्टार प्रोफाइल्स जिनको मैं कहूँ, वो हर साल कोई 3-4 बच्चे होते हैं जिनको मैं कहूँ कि यार ठीक है, देव रियली लाइक वो जिस दिन से पैदा हुए हैं वो अपने प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं. बट मोस्ट पीपल आर नॉट लाइक दैट. मोस्ट पीपल डोंट टेक अप जॉब्स बिकॉज they're thinking about getting a certain scholarship, because honestly most people don't have that liberty. I did not have that liberty कि आप जॉब वो वाली लो जो आपके प्रोफाइल पे अच्छी लगे. सो अब आपने ये देखना है कि अच्छा ठीक है, हाउ डू आई
take what I have and transform it into something that relates to what I want to do. Of course, कुछ लिंक होना चाहिए. ये बहुत ज्यादा लोगों को होता है कि ठीक है मैंने अप्लाई करना है मास्टर्स इन साइकोलॉजी में और मेरे पास इस वक्त सिर्फ कंटेंट क्रिएशन का एक्सपीरियंस है. ठीक है, आप उसको भी लिंक कर सकते हो, बट दैट्स गोना बी वेरी वेरी फार अवे लिंक. सो ये कि उस लिंक को थोड़ा सा बेहतर डेवलप करना है. फीफा, आई वुड वांट योर इनपुट एज वेल बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कि अच्छा अब एक्सपीरियंस ना होना या एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिस्टेंट होना, हाउ डू यू कनेक्ट दैट या हाउ डिड यू कनेक्ट इट फॉर पायनियर टू अ स्पेसिफिक प्रोग्राम दैट वाज फोकस्ड ऑन ई गवर्नेंस? Yeah, so my experience was very, like, not very, but like largely not relevant. I would say, मतलब इतना मुश्किल था मेरे लिए because I was a public administration student and I was applying for a program with a focus on digitalization. Public administration से तो वो relate कर रहा था, लेकिन मेरा जो work experience था वो journalism के अंदर था. एंड जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन, उसको मैं पब्लिक या तो ये होता कि मैं जर्नलिज्म पब्लिक सेक्टर के लिए कर रही होती तो दैट वुड हैव बीन डिफरेंट. बट सो व्हाट आई डिड वाज कि मैं जब अप्लाई भी करी थी तो आई थिंक आई हाईलाइटेड दिस विद रमशा एज वेल दैट आई वांट टू फाइंड अ थ्रेड जो मेरे सारी चीज़ों को कनेक्ट करे. तो मैंने ये देखा कि अच्छा, मैं जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रही हूँ दैट इज़ अबाउट ई गवर्नेंस, एंड ई गवर्नेंस के लिए या इवन टेक्नोलॉजी के लिए किसी भी पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री वो हो, डेटा इज़ एट द सेंटर. तो डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस, डेटा टूल्स, इस तरह की जो भी चीज़ें ना, वो दे सिट एट द कोर ऑफ डिजिटलाइजेशन, राइट. तो मैंने ये किया कि मैंने अपनी जर्नलिज्म की जॉब में से सिर्फ अपना जो डेटा वाला, जो मेरा एक बड़ा सारा रोल है, ठीक है, अब स्पेशली पीपल वर्किंग फॉर स्टार्टअप्स, आई फील लाइक के दे आर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स फॉर द मोस्ट पार्ट. तो उसके अंदर मैंने अपना एक जॉब का एक छोटा सा कंपोनेंट जो डेटा से रिलेट करता था, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको हाईलाइट किया अपनी सीवी में भी, और अपने मोटिवेशनल लेटर में. मैंने उधर उधर की बात ही नहीं की कि मतलब मैं उस जॉब में इस रेलेवेंट एक्सपीरियंस के अलावा और क्या करती थी, इवन दो वो ज़्यादा मेजर पार्ट था मेरी जॉब का, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरे प्रोग्राम से रिलेट नहीं करता. तो मैं उसको क्यों बताऊं, मतलब इससे बेहतर है कि मैं वो छोटा कंपोनेंट ही हाईलाइट करूं. मैंने उसमें ये बताया कि किस तरह मैं जो जर्नलिज्म करती हूँ उसके अंदर मैं रिग्रेशन टूल्स किस तरह यूज़ करती हूँ, मैं उसके अंदर डेटा के ऊपर रिपोर्टिंग किस तरह करती हूँ, डेटा लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है. और मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि this limited work experience has allowed me to understand the importance of fair data reporting. इस तरह की बात मैंने कोई की थी कि किस तरह से नंबर्स जो हैं वो किसी भी पॉलिसी इंटरवेंशन को या तो आर कर सकते हैं तो पार कर सकते हैं. इस तरह की कोई मैंने बात की थी कि वाइल्ड, मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि ये रेलेवेंट नहीं है या क्या. मैंने उसको बस, जो मेरे पास लिमिटेड थी ना चीज़, मैंने बस उसके ऊपर कैपिटलाइज किया कि because now I have data skills as well. I have a bachelor's in public administration and now I have those skills. और मैंने थीसिस को भी फिर उसके अंदर, थीसिस भी मेरा पूरा क्वांटिटेटिव था, तो मैंने अपनी वो वाली भी उसके उसके अंदर भी मैंने डेटा का कंपोनेंट हाईलाइट किया था. उसके अलावा भी मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स अपने छोटे स्मॉल स्केल, वेरी स्मॉल स्केल सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर भी मैंने जो डेटा का कंपोनेंट था या टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट था, डिजिटलाइजेशन का कंपोनेंट था, उसको मैं हाईलाइट करती चली गई. हालांकि ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ डिजिटलाइजेशन के बारे में थे, बट इट्स जस्ट द वे आई मोल्डेड देम एंड देयर वाज नो लाई. मे बी अ बिट ऑफ एग्जैजरेशन यू कुड से, बट समथिंग दैट वाज वेरी रियलिस्टिक एट द सेम टाइम. तो दैट्स हाउ आई डिड इट. एंड या आई वाज लाइक कि अब ये सब मैंने कर लिया है, अब अगर मैं डिजिटलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ पब्लिक सेक्टर में, तो आई नीड स्टिल लाइक अ बेटर स्किल सेट, और वो मुझे कहीं और से नहीं मिलेगा सिवाय इस डिग्री के. सो दैट्स हाउ आई कनेक्टेड इट, आई थिंक. या, थैंक यू फॉर दैट. आई थिंक दैट वाज वेरी रेलेवेंट कि आपने कैसे मोल्ड करना है, कैसे उसको डिस्क्राइब करना है, एंड हाउ डू यू मेक इट रेलेवेंट. यू हैव टू ऑल्सो लुक एट सर्टेन कीवर्ड्स. मतलब कि एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करने के बहुत डिफरेंट तरीके हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्रोग्राम यूर अप्लाइंग फॉर. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा अब ये इस प्रोग्राम के कीवर्ड्स क्या हैं. ये जिस प्रोग्राम पे मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ, ये एक मेरी बहुत बेसिक आस्क होती है. और ये आई कैन अगेन 50% of the people are not able to do it. I tell them there's this program that you want to apply to, right? मैंने पूरा पूरा वेबसाइट अच्छी तरह 8 दफा गो थ्रू कर लिया है. आपने कितनी दफा गो थ्रू किया है? एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट गो थ्रू द वेबसाइट. देर लाइक हाँ मैंने रिक्वायरमेंट्स वाला पेज पढ़ लिया है, आई मीट द रिक्वायरमेंट्स, तो बस अब मैं एलओएम लिखना शुरू करती हूँ. यू नीड टू रीड एवरी पॉसिबल थिंग देर इज टू रीड अबाउट दैट प्रोग्राम.
I know that it's time taking. I know that it's going to take a lot of energy, but doing that will help ensure that you're able to make those connections. Because जब आप उनका blog वाला part पढ़ोगे, आप देखोगे professors क्या कर रहे हैं, then you'll know कि अच्छा these are the keywords that they're focusing on. ये इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, मैं इन चीज़ों को अपने काम में कैसे incorporate करूँ. So that's a very, very helpful exercise. Yeah. Yeah, I have something to add. So, for example, जिस तरह मेरा प्रोग्राम था, that's about public sector innovation and e-governance. तो उनका बहुत ज़्यादा फोकस है इनोवेशन के ऊपर, ठीक है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा देर इज दिस यू कुड से पॉपुलर फिनोमेना विच इज़ कॉल्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, या इस तरह के जिस तरह के भी इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ पे द रीज़न बिहाइंड डूइंग सो इज़ इनोवेशन या फिर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट और इस तरह की चीज़ें इन द पब्लिक सेक्टर। तो मैंने उस चीज़ को भी हाईलाइट किया था, द प्राइमरी रीज़न वाई आई टुक अप अ जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर आफ्टर स्टडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टू लर्न अबाउट the innovations taking place in the private sector। अब ये आपको भी पता है कि इतनी कोई इसमें इतना बहुत ज़्यादा ट्रूथ नहीं था, बट मुझे समझ आ रही थी कि अच्छा प्रोग्राम का फोकस तो इनोवेशन के ऊपर है ना। और वाकई में भी उस जॉब के थ्रू मैंने वाकई बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें सीखी थी जो पब्लिक सेक्टर में रह के जो मैंने इंटर्नशिप्स की थी। तो मुझे भी पता है कि पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर इज़ वेरी आउटडेटेड और उनकी बहुत इनएफिशिएंट है, वही पुराने सिस्टम्स है, तो वहाँ पे तो इनोवेशन नहीं हो रही। तो मैंने उस चीज़ को भी हाईलाइट किया था कि ठीक है डेटा स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स अपनी जगह पे, बट एक जो विजन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेट करने के लिए, वो मैंने यहाँ से सीखा है, सो दैट कल को जब मैं दोबारा पब्लिक सेक्टर में आऊँगी तो दैट्स हाउ आई विल इम्प्लीमेंट दोज इनोवेशंस, और दैट्स द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी कुड हैव इफ आई एम टू वर्क इन अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन माई ओन कैपेसिटी। तो ये भी एक कीवर्ड था इनोवेशन का जो मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था एंड स्ट्रेटेजिकली ही किया था। Yeah. Perfect. So there are a few other examples here as well. आपके पास access होगा when you have the recordings, you can go over these as well. कि जब आप projects को अपने explain करते हैं तो आपको उनको technically explain करना है. बहुत लोग कहते हैं I led a project, उसमें 20 लोग थे और बहुत successful रहा project और बहुत अच्छा था, मुझे बहुत appreciate किया सबने. उसमें उनको क्या पता चल रहा है आपकी टेक्निक के बारे में, आपका रोल क्या था, आपने क्या टूल्स यूज़ किए, उसका रिजल्ट क्या था, उसने किस इंटरवेंशंस को और ड्राइव किया, आपने क्या सीखा, आपने क्या इंट्रोस्पेक्ट किया. सो वो जो सारी टेक्निकल बिट्स हैं दे नीड टू बी प्रेजेंट इन योर वर्क एक्सपीरियंस. कि जब आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जिस तरह फीफा ने कहा, मैंने रिग्रेशन टूल्स मेंशन किए, टॉक अबाउट देम स्पेसिफिकली, टॉक अबाउट देम टेक्निकली. ओवरऑल ना बताएं कि जी मैंने ये प्रोजेक्ट लीड किया था, बहुत अच्छा हो गया, इतने लोग थे और सबने बहुत अप्रिशिएट किया. दैट डजंट टेल देम एनीथिंग अबाउट द एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस, बिकॉज वर्क एक्सपीरियंस में दे वांट टू नो टेक्निकल स्किल. सो हाईलाइट योर टेक्निकल स्किल. एक और अब कुछ डोंट्स भी मैं डिस्कस करूंगी. एक तो बहुत बड़ा डोंट है वो ये कि जस्ट डोंट से दिस इज माय दिस प्रोग्राम इज माय गोल. आई नो कि वैसे बड़ा ज्यादा फ्रेज यूज होता है कि दिस प्रोग्राम अलाइंस विद माय गोल्स. ओके ठीक है. हाउ? if you just leave it at that okay, Pioneer is my dream program and this is like the next step, this aligns with my goals. What are those goals? How does it align? So the how wala part, that's super important. So you want to make sure that you are able to tell us how your interest in that study has developed and which parts of the program you're now interested in. So make sure कि आप उसको specific करें and you don't rely on cliched sentences to get the point across. जब हम एलओएम की बात कर रहे हैं, हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, हमने एजुकेशन कवर कर लिया, हमने वर्क एक्सपीरियंस कवर कर लिया. यहाँ पे अब आपने अपनी पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी है. क्योंकि आपने अब उनको एक स्टोरी बताई है कि देखिए ये सारा कुछ मैंने किया है, ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने किया है. अब मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम पे काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. ठीक है, दिस इज वेयर यू इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम. यू कैन इंट्रोड्यूस इट इन द स्टार्ट एज वेल, दैट्स अप टू यू. बट आप यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि जी ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ये मैं करना चाहती हूँ इस प्रॉब्लम के साथ. So that needs to come in here. You need to talk about what the long term goal is. आप उसमें किस तरह की इंटरवेंशंस डिजाइन कर रहे हो. अगेन कीवर्ड्स भी यहाँ पे सारे इंसर्ट होंगे. एंड इट नीड्स टू, दिस इज वेयर एवरीथिंग कम्स टुगेदर. कि अगर आप एक एलओएम को देखो तो इट्स लाइक एन इन्वर्टेड पिरामिड, जहाँ शुरू में आप थोड़ी ब्रॉड बात कर रहे हो. ठीक है, आपका एजुकेशन भी थोड़ा सा ब्रॉड हो सकता है, वर्क एक्सपीरियंस के टाइम पे आपने थोड़ा और नैरो कर लिया. बट यहाँ पे वो पॉइंट कल्मिनेट होता है जहाँ एवरीथिंग दैट यू डिस्क्राइब्ड हैज टू मेक सेंस. कि okay, this is why they were talking about all of these things, because this is what they want to do. So that coming together of idea really needs to happen at this point.
एंड देन द लास्ट पार्ट, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स व्हाई दिस मास्टर्स, बिकॉज अब आपने कह दिया कि ठीक है मैंने ये सारा कुछ किया है, ये मैंने करना है, अब ये करने के लिए मुझे आपके प्रोग्राम की जरूरत है. दैट इज हाउ यू यूज देयर प्रोग्राम स्ट्रेटेजिकली, एंड दैट इज व्हाई इट्स सपोज टू बी अ स्टेपिंग स्टोन. That's why we're saying the scholarship can't be the goal. The goal has to be beyond the scholarship. The scholarship is the stepping stone. कि कुछ जो मैं आगे करना चाहता हूँ या चाहती हूँ उसके लिए मुझे क्या क्या करने की जरूरत है. उसमें भी आपने कुछ सेंटेंसेस अवॉइड करने हैं. द नंबर वन इज कि एडवांस्ड करिकुलम विल प्रोवाइड मी प्रैक्टिकल नॉलेज. All programs in a developed country will have a practical component. So please don't say this. Don't say that their curriculum is advanced. How? What components about that curriculum excite you? फिर जब आप प्रोफेसर्स की भी बात करते हैं, आप ये ना कहें कि जी I am very excited to learn under the esteemed faculty. Who is the esteemed faculty? कौन से प्रोफेसर्स, उनका क्या काम, क्या रिसर्च. इवन इफ यू मेंशन प्रोफेसर्स, अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट से दैट आई एम एक्साइटेड टू वर्क अंडर प्रोफेसर दिस. व्हाई? क्यों? क्या सीखना है आपने उस प्रोफेसर से? व्हाट डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग अबाउट हिज वर्क? हाउ डू यू थिंक दैट प्रोफेसर कैन कंट्रीब्यूट टू योर लर्निंग, योर इंटरेस्ट एंड योर गोल्स? एंड कोई और चीज़ प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, कोई इंटर्नशिप है, कोई समर स्कूल है, कोई क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, डिस्कस हाउ दैट फिट्स इन टू दिस एंटायर नैरेटिव. सो वो भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो. ये दिस इज एंटायरली हाइपोथेटिकल बाय द वे, बट ये कि आप जिस तरह कोई एक डेवलपमेंट पॉलिसी के प्रोग्राम पे अप्लाई करना चाह रहे हो, सो यू कैन टॉक अबाउट कि अच्छा प्रोग्राम फ्लेक्सिबल है. आपने ये नहीं कहा कि अलाइंस परफेक्टली विद माई इंटरेस्ट. अलाइंस परफेक्टली विद माई इंटरेस्ट इन ग्रीन ग्रोथ. So make sure that you're identifying which areas you want to talk about. And then when you mention professors as well, you're talking about, okay, um, आप पर्टिकुलरली अगर इन प्रोफेसर की बात कर रहे हो तो वो किस चीज़ की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो कैसे फिट इन करता है. सो वो सारा कुछ यहाँ पे फिगर आउट करना, यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है. एंड येस यू कैन मेंशन प्रोफेसर्स नेम इन स्टेटमेंट्स, बट यू हैव टू बी श्योर. सो आप ये नहीं कर सकते कि आपने बस एक सरसरी लुक की वेबसाइट को प्रोफेसर का नाम छापा और वहाँ पे डाल दिया, बिकॉज इट कुड बी कि वो प्रोफेसर का वो काम ही नहीं है जो आपने सोचा है, because then that can backfire. So make sure that when you're mentioning professors, you're very confident with what they do and how they fit into this, and that they are actually a part of that program. क्योंकि ये भी हुआ है कि आपने चैट जीपीटी या किसी और चीज़ पे रिलाई किया है, उसने आपको कोई फेक नेम दे दिया एंड यू एंटर्ड दैट, एंड देर गोना लुक एट इट, एंड द डिपार्टमेंट बैठ के पढ़ रहा होगा, वो कहेगा यार ये बंदा कौन है जिसका इन्होंने मेंशन किया है, ये तो हमारे डिपार्टमेंट का हिस्सा ही नहीं है. तो आप ज़रूर मेंशन करें, बट बी केयरफुल विद what you're mentioning. उसके अलावा या सो आई वांट के आई टेक इट बैक टू अफीफा अगेन बिफोर वी गो टुवर्ड्स क्लोजिंग. कि अफीफा, अब जब लाइक हमने इतना बात की है कि काफ़ी डिफिकल्ट था, आई वांट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद मी पर्टिकुलरली. हाउ डिड यू थिंक दैट हेल्प्ड? कौन सी चीज़ें हैं जिसमें लगता है कि आप पहले नहीं फिगर आउट कर सक रहे थे, एंड वर्किंग विद मी और वर्किंग विद like somebody who's been through the process, how did that help? And another thing that I want to highlight, वो ये मैं आप चाहूंगी आप बात करो कि like how difficult it was to take care of like this. How did you stay motivated applying for so many things, and how did you manage your schedule basically? Yeah, that's a very good question and there's a lot to say. So first of all, जो मेरा सबसे बड़ा challenge था, because as I said कि Pioneer पहली दफ़ा नहीं मैंने apply किया था. When I got selected, it was basically my second time. जब मैंने first apply किया था पहली दफ़ा, तो मैंने ऐसे भी रिव्यू करवाया था विद माय लाइक फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड पीपल हु आई ट्रस्टेड, जिनका मुझे था कि यार दोज हु आर रियली गुड इन देयर फील्ड्स. तो ऐसा नहीं था कि मैं अपने ओन पे ही इतनी कॉन्फिडेंट थी जब फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही थी. बट आई थिंक द सेकेंड टाइम आई वॉज लाइक कि नहीं, अब तो बस मुझे आई वॉन्ट टू नो, आई नीडेड लाइक एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन माई प्रोफाइल, बिकॉज ऑनेस्टली आई वॉज कॉन्फिडेंट द फर्स्ट टाइम. सेकेंड टाइम मैं थोड़ा वो हो गई थी, हम्बल हो गई थी कि इतना भी नहीं है, एंड आई नीड टू वर्क ऑन माई प्रोफाइल. इवन दो कहीं ना कहीं मुझे ये भी होता था कि शायद उतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं है, लेकिन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन माई एसेज द फर्स्ट टाइम आई अप्लाइड. बट आई थिंक जब आप रिव्यू करवा रहे होते हो ऐसे, एंड उन लोगों से करवा रहे होते हो जो आपकी फील्ड के नहीं हैं, that's sort of risky. बिकॉज आई फील लाइक कि इरास्मस, अगर हम बिल्कुल एक्सक्लूसिव इरास्मस की बात करें, तो इरास्मस में मोस्टली इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स होते हैं. अब मेरे आसपास जितने भी लोग थे, इवन माई टीचर्स, they were from backgrounds who with a focus on just public policy, just public administration. There was no one around me
जिसने इंटीग्रेट किया हो पॉलिसी और टेक्नोलॉजी को। तो मेरे लिए किसी ऐसे इंसान से बात करना बहुत ज़रूरी था जो मेरी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, और ना सिर्फ अंडरस्टैंड कर सके, क्रिटिक भी कर सके। क्योंकि उससे पहले, आपसे पहले जब मैंने रिव्यू करवाए थे ऐसे, तो सबने मुझे यही बोला कि हाँ बहुत अच्छा है, और मुझे भी लगा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि अपेरेंटली उसमें कोई फ्लॉ नहीं था। बाद में व्हेन आई रीच्ड आउट टू यू, आई रियलाइज्ड एंड यू टोल्ड मी कि सारा ठीक है, गोल्स कहाँ हैं? गोल्स मैंने नहीं हाईलाइट किए हुए थे, एंड अगेन बिकॉज ये था भी कि आई वॉज ट्रीटिंग द स्कॉलरशिप एज माई गोल, and I had no vision as such, because I feel like that vision is very important. So I feel like getting help from you, like consulting from you, allowed me to realize कि उसको एक, क्योंकि जब मैं सिर्फ अकेली अप्लाई करी तो शायद मैं बहुत क्लोजली ऐसे देख रही थी, बट आई थिंक व्हेन आई reached out to you, I was able to sort of मतलब बहुत मैक्रो और माइक्रो दोनों तरीकों से I was able to look at my profile and holistically उसको मैं कवर कर रही थी कि अच्छा, does it actually make sense? ऑल्सो आई रिमेंबर जब मेरी फर्स्ट एप्लीकेशन थी रमशा के साथ, तो शी सेंट मी सम पेपर्स एंड दैट वाज लाइक के मेरे लिए ये नई चीज़ थी कि क्या मतलब मोटिवेशनल लेटर के लिए अब मैं पेपर्स पढ़ूंगी। बट देन अगेन मैंने पढ़े वो पेपर्स, और फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख रही हूँ, कोई प्रॉब्लम हाईलाइट कर रही हूँ, और बाद में मैं उसको सोल्यूशन की तरफ भी लेके जा रही हूँ, तो इट शुडंट कम आउट ऑफ थिन एयर, स्पेशली विद समवन लाइक मी जिसका लिमिटेड वर्क एक्सपीरियंस है, जिसको वाकई ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ का उतना आइडिया नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप उसको पढ़ लें पहले, प्रॉपर उस फील्ड को रिसर्च करें, और फिर अपना ऐसे लिखें। आई फील लाइक वी टेक दिस लेटर ऑफ मोटिवेशन फॉर ग्रांटेड अ लॉट ऑफ टाइम्स, एंड आई रिसेंटली स्पोक विद माई professor who directly deals, who is basically part of the scholarship panel for Pioneer. वो हमें पढ़ा रहे हैं अभी, पहला सेमेस्टर है मेरा भी। तो I asked him, what's the most important part of the application? And he was like, yeah, it is motivational letter. उसने कहा कि, उन्होंने कहा कि आपको क्यों लगता है कि अगर सिर्फ डिग्री होती, आपकी सिर्फ जीपीए होता, तो शायद काफी लोग यहाँ पे ना बैठे होते जो अभी बैठे हुए हैं, बट they stood out because of their stories, they stood out because of their motivation and because of that unique vision that they had. So that was very eye opening for me as well. And I feel like yeah, you helped me refine my goals, and also like sort of find a common thread between my personal journey, the problem I was trying to highlight, my experiences and the program. तो वो एक जो एक थ्रेड था, जो क्योंकि अदरवाइज वो सारा स्कैटर्ड था, उस सबको आई फील लाइक यू हेल्प मी जॉइन दोज डॉट्स। एंड उससे भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि यू हेल्प मी स्टे ग्राउंडेड, बिकॉज नो बडी एल्स वॉज विटनेसिंग माई हार्ड वर्क। एफर्ट तो मैं कर रही थी और घर वालों को भी पता होता है, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज वो उस फील्ड को या उस पूरी सिचुएशन को उस तरह से नहीं समझते जिस तरह एक एक्सपर्ट समझ रहा है। तो आई थिंक कि वो काफ़ी ज़्यादा आपको, मतलब अगर मुझे मेरे घर वाले या दोस्त बोलेंगे कि यार तुम कर लोगी, तो मुझे उस तरह वैलिडेशन नहीं मिलती थी। बट इफ़ यू वुड से इट कि अफीफा तुम कर लोगी, तो मुझे ज़्यादा वैलिडेशन, बिकॉज आई न्यू यू वर इन दैट पोजिशन टू सॉर्ट ऑफ टेल मी कि हाँ भाई ये सच है, तुम कर रही हो काम, ठीक है। और जब नहीं भी करती थी तो यू वर डायरेक्ट विथ मी दैट ब्रो यू आर नॉट वर्किंग। सो आई थिंक दैट वाज वेरी 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 हेल्पफुल इन माई केस। आई हैड समवन टू एड्रेस कि भाई ये कैसे होगा, ज़रा ज़रा सी बात पे इतनी एनजाइटी, पूरा प्रोसेस बहुत एनजाइटी इंड्यूसिंग होता है। आप, और मैंने जैसे बताया आई अप्लाइड फॉर 13 scholarships, तो इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई वाज स्पेंडिंग ऑन दोज एप्लीकेशंस एज वेल, द टाइम आई वाज गिविंग, आई हैड अ फुल टाइम जॉब। तो इट्स डिफिकल्ट, मतलब, और ये तभी समझ आती है जब आप उस चीज़ से गुजर रहे होते हो। उससे पहले आपको लगता है कि मैं शायद कर लूंगी, लेकिन वी आर ऑल ह्यूमंस एंड इट डज गेट टफ, स्पेशली विद द अनसर्टनिटी और विद द चांस के नहीं होगा उतना, ज़्यादातर यही होता है। तो आई थिंक मुश्किल तो था, लेकिन आई फील लाइक कि मैंने अपने जहन में अपने आप को ये बताया कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। मोस्ट मोस्ट मोस्ट। मैं काम से कभी कभार ब्रेक ले लेती थी, क्योंकि अब शायद मेरी प्रिविलेज थी या जो भी था, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी, आई वॉज वर्किंग इन अ रिमोट सेटिंग, तो मेरे लिए थोड़ा स्केड्यूल मेरा फ्लेक्सिबल था। दूसरी बात ये थी कि मैंने फिर किया टाटा बाय बाय अपनी सोशल गैदरिंग्स को भी, और फैमिली का टाइम भी मेरा रिड्यूस हो गया था, बट ऑब्वियसली वो सिर्फ कुछ महीने थे जो कि बहुत मुश्किल थे, बट आई डू थिंक दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम। और क्योंकि मैं इस तरह के इंसान हूँ, अगर मैं वो ना करती ना, अगर मैं अपनी कंफर्ट से बाहर ना निकलती और वो सारी चीज़ें ना करती, और मैं सब कुछ कर रही होती, लाइक मैं सोशलाइजिंग भी कर रही हूँ, मैं पार्टी भी कर रही हूँ, मैं
एप्लीकेशंस भी कर रही हूँ, तो मुझे भी पता है कि मैं अपना फुल तो ना दे रही होती, 100% तो ना दे रही होती, और अगर दे भी रही होती तब भी मुझे होता कि शायद आई कुड हैव डन बेटर। तो दैट वाज माय वे ऑफ इंश्योरिंग कि अगर नहीं भी होता है सब, इतनी मेहनत के बाद नहीं होता, तो फिर मुझे अपने आप का वो ना होता कि यार मेरी वजह से नहीं हुआ। फिर आई वुड हैव थॉट कि मे बी इट वाज लक, मे बी आई हैड टू इम्प्रूव माई प्रोफाइल और समथिंग लाइक दैट। लेकिन मैंने अपनी कैपेसिटी में जो भी था, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, जितना मुझसे बन सकता था ना, मुझे लगता है मैंने वो सब किया। एंड दैट वाज द ओनली टाइम जब मेरा काम हो गया। हाँ, और मैं इस पे वैसे एक और चीज़ ऐड करूँगी, वो ये कि लाइक इस वक्त बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को रिजल्ट से, आउटकम से डिसोसिएट करना, लेकिन वेरी। वो किसी हद तक करना ज़रूरी है कि योर फोकस शुड बी आई नीड टू डू द बेस्ट। इट शुडेंट बी कि ओ मेरा होगा कि नहीं होगा। आई नो यू थिंक अबाउट इट ऑल द टाइम नेचुरली, लेकिन ये कि आपको किसी हद तक आपको आउटकम से डिसोसिएट करना है। आपको उस वक्त अपना गोल बनाना है कि मेरा गोल है अच्छी एप्लीकेशन सबमिट करना। हाउ डू आई सबमिट द बेस्ट पॉसिबल एप्लीकेशन, and what is going to get me to that point? Is it reading papers, is it reaching out to a mentor, is it getting a counselor, is it doing something else? What is going to help you get the best possible application out there? फिर होता है नहीं होता, मतलब कि अगेन लक है, सारा कुछ है। बट अनदर थिंग दैट आई वुड पॉइंट आउट के प्रोफाइल से ज्यादा वन जो मुझे नजर आता है सक्सेस का रेट, वो पर्सनालिटी टाइप के थ्रू नजर आता है। द पीपल हु मेक इट देयर लाइफ पर्पस कि मुझे ये करना है, एंड देन दे जस्ट कमिट टू इट, एंड देर लाइक कम हेल और हाई वाटर मुझे ये स्कॉलरशिप चाहिए, एंड दे अप्रोच इट इन द सेम मैनर, दे इवेंचुअली गेट समथिंग। मैंने उनको कभी भी फेल होते हुए नहीं देखा। अगर वो इतनी एनर्जी इतनी एफर्ट लगा रहे हैं, हो सकता है हाँ उस आइडियल टाइम पे ना हो जब वो चाह रहे हैं, हो सकता है 6 महीने बाद हो जाए, हो सकता है अगले साल हो जाए, लेकिन इफ दे एक्चुअली कमिट टू एन आइडिया कि मुझे ये करना है, तो वो हो जाता है। एंड अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स रिजेक्ट हो जाते हैं, बट ये विजन कि मुझे ये करना है, एंड आई कैन डू, आई कैन पुट इन द एनर्जी फॉर दिस, I don't think that ever fails. But another question, Afifa, like, was it worth it? Can you tell us a little bit about how it's going and like what is it like? सो ऑब्वियसली जब मैं आ रही थी यहाँ पे, या जब आई थी, तो शुरू शुरू में बहुत पिंच करती थी अपने आप को, बिकॉज बहुत अनरियल लगता था, बिकॉज यूरोप इज सो प्रिटी। पहली बात तो ये। लेकिन इट डज गेट टफ एज वेल, दोनों चीज़ें, मतलब टफ इसलिए होता है क्योंकि फैमिली से मैं दूर रह रही हूँ, और पहले भी रह चुकी हूँ, बट मूविंग टू अनदर कंट्री ऑन योर ओन इज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। बट I think I get reminded every single day why I'm here, and I don't regret even a second of all the hard work that I put in. उसकी वजह ये भी है, सबसे बड़ा reality check मुझे तब मिलता है when there are people in my class who are self-funding their degree, who are spending so much money on the same kind of opportunity that I have. और मतलब it's like getting salaried without like your without working basically. तो हर महीने जब स्टाइपेंड आता है, आई डोंट माई फाइनेंसेस, लाइक आई फील लाइक दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत ही आपके फाइनेंसेस होते हैं। तो जब वो आपके सर पे नहीं है ना, तो देर आर थिंग्स दैट यू कैन फोकस ऑन। अगर वो मतलब जब फाइनेंशियल बर्डन आपके सर पर से हट जाता है, तो फिर ही मुझे लगता है आप थोड़ा क्लैरिटी के साथ देख सकते हो कि अच्छा कितना कुछ है, मैं ये भी कर सकती हूँ, क्योंकि पैसों का अब इशू नहीं है। इरास्मस इज अ वेरी जेनरस स्कॉलरशिप। आपको दे गिव यू मोर देन enough to not just like study and sustain, but to travel also. And I went to Paris last week, and it was absolutely amazing, or with all thanks to Erasmus. So why would I regret it at all? And even like the education that I'm getting here, I'm studying at KU Leuven. I'm in Belgium right now. मेरा next semester Germany में है, and it's the program that I wanted to study. If it was a program जो मैंने बस ऐसे ही अप्लाई, अव्वल तो मेरा होता भी ना इस तरह के किसी प्रोग्राम में, क्योंकि it's very competitive. They always take the students who actually want to do something and are relevant. तो I feel like every day I am just thankful and grateful to God, क्योंकि मैं वो पढ़ रही हूँ जो मैं पढ़ना चाहती थी. And it's also like the prestige that comes with being a scholar, that is also वेरी रियल. क्योंकि लाइक अक्सर क्लास पे जब भी बात हो रही होती है, तो प्रोफेसर्स जस्ट ऑलवेज अप्रिशिएट दैट इफ यू आर ऑन अ स्कॉलरशिप यू शुड नो दैट यू डिड समथिंग बिग, एंड दिस विल ऑलवेज स्टे विथ मी टिल द डे आई डाई. द स्कॉलरशिप टैग विथ मी, इट विल ऑलवेज be a part of me and my story. And I do think that it was worth it, because I am exactly where I wanted to be. And
इट्स नॉट लाइक सबको सब मतलब सबको नहीं सब सब इतने लकी नहीं होते या सब उस तरह नहीं पहुंच पाते उस जगह पे जहाँ पे मैं भी हूँ। तो मतलब मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि मैंने एफर्ट की और फिर मुझे वो रिजल्ट भी मिला एंड आई एम लिविंग माई ड्रीम एट द मोमेंट। Perfect. That thank you so much. I think that was very very heartwarming और मुझे बहुत खुशी हुई है personally सुन के because I've seen how tough it gets, you know, वो काफी काफी मुश्किल हो जाते हैं when you're just like यार कुछ भी नहीं हो रहा तो हाँ। मैंने और कुछ नहीं करना। खैर जस्ट ऑन एंडिंग नोट, प्लीज डोंट यूज चैट जीपीटी। इफ यू यूज इट प्लीज यूज इट स्मार्टली, देर इज नो हार्म इन यूजिंग इट, बट आपको बहुत स्मार्टली यूज करना है बिकॉज इफ you're using it, I can tell you all of the others are also using it, and 90% of the statements I read, they look the same because you're expressing yourself in the same way. You're using the same terminology, the same phrases, the same sentence structure. So please be smart with your usage and don't rely on ChatGPT to do all of your paraphrasing, to do all of your edits, to do all of the writing. Write it yourself और कुछ छोटे छोटे parts लिखवा लें, but don't rely that the entire thing can be written by ChatGPT. So please ChatGPT ना use करें. What else? Yes. End पे जो मैं highlight करना चाहूँगी before we close or maybe do a little bit of questions कि मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ. सो ये कि we're doing one-on-one sessions for Erasmus. If you feel like you don't know where to start, so you can set up a session with us. I can help you go through the different programs and tell you कि okay, these are the ones that might be relevant to you, the ones that you can start with and like figure out उसको कैसे proceed करना है. If you're already done with your applications or if you feel like कि मेरे एसेज हो गए हैं, मुझे कोई देखने वाला चाहिए जो मुझे एक दो तीन रिव्यूज करे और क्रिटिकली मुझे बताए कि इसमें क्या चीज़ चेंज होने वाली है या क्या चीज़ फिक्स होने वाली है. सो वी कैन डू ऐसे रिव्यूज एज वेल. और इफ़ यू थिंक दैट यू नीड असिस्टेंस एंड टू एंड, विच वॉज समथिंग दैट आई वॉज डूइंग विद फीफा, कि हम फिर हर चीज़ साथ करते हैं. आइडिया क्या करना है, मैं आपको रिसर्च में भी हेल्प करूंगी, मैं कहूँगी नहीं इसके इंटरवेंशंस ठीक नहीं है, इसमें रिसर्च का कंपोनेंट नहीं है, वो इनकॉर्पोरेट करो. तो फिर हम हर छोटी 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 चीज़ को इकट्ठे करते हैं. हम सीवी भी साथ एडिट करेंगे, हम एलओआर्स भी साथ देखेंगे, आपको और प्रोग्राम्स का भी मैं बताऊंगी. फिर देन दैट इज एंड टू एंड जिसमें वी डू एवरीथिंग टुगेदर. द एंटायर प्रोग्राम is like a collaborative experience. Another thing that I just want to point out is that I am not going to be doing the work for you. I want that to be very clear that my goal here with this thing is to help you do it. Because I can't do anything. If you give me all of your data, for example, अफीफा मुझे अपना सारा कुछ देती और कहती मेरे लिए पर्सनल स्टेटमेंट लिख देते, मैं लिख भी दूं, that statement would not get selected. I don't know how else to say this कि वो मैं नहीं कर सकती. जो आपका अपना पर्सपेक्टिव है, आई कैन हेल्प यू रिफाइन इट, आई कैन गिव यू डायरेक्शन, आई कैन हेल्प यू फाइंड अ नैरेटिव, बट इट हैज टू बी रिटन बाय यू. दैट knowledge, that those connections, that background, that experience, those insights, they will only come from you, and I will act as somebody who filters through that. कि अच्छा आपने मुझे ये सारा कुछ बताया, इसमें से इस पे फोकस करो और इसको इससे इस तरह से लिंक करो. दोज आर थिंग्स दैट आई कैन हेल्प विद, but I will want you and I will always encourage you to take charge of your scholarship application, take charge of your इंटायर प्रोग्राम, बिकॉज वो करोगे तो फिर आप सक्सेसफुल होगे. अगर आप रिलाई करोगे काउंसलर पे कि मैंने आपको बता दिया, आप लिख दें, आप बता दें, आप कर लें, तो मैं कर लूंगी और फिर कुछ भी नहीं होगा. सो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया. So on that note, I think that we will be ending our session. Regarding, we have a question on CGPA. So देखिए CGPA मैटर करता है, yes, but CGPA खाली मैटर नहीं करता, सारा कुछ मैटर करता है. तो ये कि ना आपको कोई एक थोड़ा लोअर एंड का CGPA entirely आउट ऑफ द रेस कर देता है, ना बहुत हाई CGPA ऑटोमेटिकली आपको आगे ले जाता है. सो इट्स अ पैकेज. दूसरा ये कि yes, Erasmus does support second masters applications, and you can mention your first masters, but you have to describe how you're building on that. So it can't be कि अच्छा मेरा masters पहले भी डेवलपमेंट स्टडीज में था, अब भी डेवलपमेंट स्टडीज में है, उसमें भी सेम मॉड्यूल्स थे, इसमें भी सेम मॉड्यूल्स हैं, फिर आप पढ़ आगे क्या जा रहे हो. सो वो जो नेक्स्ट लेवल का स्टेप है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए कि भाई ये मैंने पढ़ा था और अब ये मैंने पढ़ना है. Yes, I can help people with all backgrounds because I've worked on so many applications and my own work has been very interdisciplinary, that I can assist with data science and AI and public health. I've read so much on public health. I feel like now I can like come up with interventions on the fly for public health, and I have like absolutely no particular background in public health. So yeah, thank you so much. You will all be getting the recording for this session,
And yeah, and if you have any queries, I'll be sharing the link for the recording and like next steps for this as well. Uh, yeah, so that's all. And if you have any other questions that I'm not able to answer here, so आप please मुझे email कर सकते हैं, and yeah, I help with everything. I just don't write statements. So if you're looking for somebody to write your statements, that's the only thing I don't do. But आपको किसी भी scholarship के बारे में बात करनी है, admissions की बात करनी है, that's something that I'll definitely be able to help with. So thank you, Afifa. Thank you for sharing your experience with us. It was refreshing to know कि आपका कैसा experience था, आपने क्या क्या किया, and to hear it directly from you, who's been through this like right now. So yeah, and it makes me the happiest to see you live your dream. Thank you so much, Ramsha. I'm so glad that I actually reached out to you. I feel like you did play your role for sure. मतलब मैं नहीं समझती कि मैं कर सकती थी without your support for sure. Yeah. Thank you so much. And thank you everybody for joining in. And I hope to hear from all of you soon regarding your questions and next steps. Thank you, everybody. Goodbye. Allah Hafiz.